Hi children, this is Ritu Tamret and you are most welcome to my channel Literature with Ritu. So recently we have started one play, 12th Night, and first part I have already uploaded up to here. In the first part I have explained up to this line. Viola called herself Cesario and no one but the captain knew she was a maiden in disguise. So up to this line or up to this paragraph I have already explained, and today we are going to start from this paragraph, which starts with the line Viola performed her duties as a page. अब तक की कहानी में हम लोग पढ़े हैं कि देर वर टू brothers and sisters, Sebastian, Viola, and they were caught in a very violent storm and they got separated from each other. Now Viola जो है वो actually the kind of place she reached, so in that place she knew, I mean she did not know anybody, so she was quite afraid what she would do, what she would not, like a lot of things. तो उसको एक I mean कुछ एक help मने कुछ support मिला जब when she came to know about the Duke, और उसने डिसाइड किया कि शी वुड वर्क एज अ पेज. अब ऑब्वियसली सबको अपना जो है अपना ज़िंदगी को चलाने के लिए एवरीबडी नीड्स मनी एंड एवरीबडी नीड्स वर्क, सो शी ऑल्सो डिसाइडेड एज शी वॉज टोटली अलोन ओवर देयर इन द आइलैंड ऑफ इलैरियो. इलैरियो नाम था ना उसका. एक मिनट रुको, क्या नाम था? जस्ट मिनट, मुझे देखना होगा क्या नाम था, मैं नाम भूल गई हूँ. हाँ, उसका नाम था इलीरिया, नॉट इलेरियो. तो उस आइलैंड ऑफ इलीरिया में सी did not have anything to do, but obviously everybody needs work because they have to earn money to make both ends meet. So that's why she decided to work as a servant to the Duke of that land. Then Viola performed her duties as a page so well that before many days had passed she was already high in Orsino's favor. So उसने एज अ पेज, तो पेज का मतलब वही सर्वेंट टाइप का हुआ. तो शी स्टार्टेड डूइंग दैट जॉब to the Duke Orsino, and she was performing all her duties with so much of responsibility or with so much of care that she was like वो बहुत Orsino जो ड्यूक था उसकी नज़र में she became very high, like she earned a lot of respect from Orsino, from the Duke. Okay, so उसके बाद ही फाउंड हर सो फेथफुल, मैंने जो ड्यूक था उसने जो वायोला को इतना फेथफुल पाया कि चलिए आगे देखते हैं हम लोग. तो शी फाउंड her so faithful in attending his wants and so sympathetic in listening to him when he talked that she gained his entire confidence, and he soon told her all the stories of his love for Olivia. Now as she was attending the Duke as his page, or she was a very true attendant towards Orsino, towards the Duke, then he Orsino started having a lot of faith in Viola, and वो उसके नज़र में काफ़ी ऊपर उठ चुकी थी. ठीक है, वो वायोला के मतलब वायोला उसकी नज़र में इतना ऊपर उठ गई थी दैट ओर्सिनो उसको इतना चाहने लगा, मतलब उसको इतना, उसके लिए, मतलब देखो यहाँ लिखा है सो सिंपैथेटिक इन लिसनिंग टू हिम, मतलब व्हेन ही उसको जब वो कुछ बोलता था, व्हेन ही वुड टेल हर एनीथिंग और व्हेन ही आस्क हर टू डू एनीथिंग फॉर हिम, तो उस समय भी वो बहुत सिंपैथेटिक होती थी उसकी तरफ. एंड शी वॉज सॉरी वायोला वॉज वेरी अटेंटिव एंड ओबीडियंट टू द ड्यूक ऑर्सिनो. तो धीरे धीरे उसको एक बहुत फेथ आने लगा उसके ऊपर, बहुत विश्वास करने लगा वो वायोला के ऊपर, और इतना विश्वास करने लगा देन दैट ओर्सिनो, जस्ट अ मिनट, कि वो उसके ऊपर इतना विश्वास करने लगा दैट Orsino now told Viola about his love towards Olivia.
ठीक है, और सीनो ओलिविया से प्यार करता था, और ओलिविया कौन थी, क्या थी, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट वीडियो। ठीक है, तो ओलिविया के बारे में वो वायोला को बता दिया, एंड ऑफ हाउ द लेडी रिफ्यूज टू सी हिम और रिसीव द मैसेंजर्स he sent to her, he sent to tell her of his love, and also how Olivia was so मतलब ओलिविया जो थी वो इतनी अनइंटरेस्टेड थी। ओके, ओलिविया was so uninterested in the Duke because of all her miseries and sad life, and why she was sad, why her life was full of misery and all, everything has been explained in the first video, so I'm not going to repeat all this. Sorry. So तो उसने सब कुछ बताया कि हाउ ओलिविया always would refuse to see him, right, and she would always I mean she was not ready to receive any of his messengers because he time and again would send to her his messengers to tell her about his love. उसको वो उनको भेजता था अपने प्यार के बारे में बताने के लिए, but she was totally reluctant towards his messengers. And Viola, as she listened to this story, began to fall in love with him, but she hid her love or showed only so much as a page might rightly feel for his master. अब वायोला जो है वो उसके साथ इतने दिन से रहती थी obviously, but Viola was not I mean Viola was not attending the Duke as a girl but as a boy. लेकिन अंदर ही अंदर she started loving the Duke. वो अंदर अंदर से ड्यूक को चाहने लगी, क्योंकि जब ड्यूक उसको अपने प्यार के बारे में बताने लगा, देन शी स्टार्टेड थिंकिंग हाउ मच सिंपल द ड्यूक वाज एंड हाउ मच लविंग द ड्यूक वाज. सो बिकॉज ऑफ his all these qualities she started having a soft corner for the Duke, but she decided not to show any of her feelings towards him because she did not want to show, like, because obviously she was attending the Duke as a boy, not as a girl. तो वो ऐसा ही उसके प्रति फीलिंग्स रखती थी जो एक सर्वेंट अपने मास्टर के लिए रखता है, राइट. दैट शी वाज हैविंग ओनली दैट फीलिंग टुवर्ड्स हिम एज अ सर्वेंट should have towards his master or her master. But before long, the Duke sent Viola with a love letter to Olivia saying, "Go to the lady, tell her of my love, and that in spite of her unkindness, I think of none but her, and remain true to her alone." ठीक है. तो here in this line, the Duke मैंने बिफोर लॉन्ग मतलब जल्दी ही, तुरंत जो है द ड्यूक आस्क्स वायोला टू गो टू ओलिविया एंड टेल हर अबाउट हिज लव, एंड he also wanted Viola to tell Olivia about the kind of true love he was having towards Olivia, because in spite of he wanted Viola to tell Olivia that वो जितना भी उसके प्रति अनकाइंडनेस हो, मतलब जितना भी वो उसके लिए उसके मन में सिंपैथी ना हो, उसके लिए वो कोई भी दया ना हो, फिर भी वो इन स्पाइट ऑफ हर अनकाइंडनेस, मतलब उसके अनकाइंडनेस के बावजूद भी, माने उसकी क्रूएल्टी, मतलब वो उसके प्रति इतनी क्रूएल थी, लाइक शी डिड नॉट वांट टू टॉक टू हिम, शी डिड नॉट वांट टू listen to him, she did not want to like listen to any of his messages which he was continuously sending through his messengers, but she did not want, she was totally reluctant as I told you. तो ये सब उसके लिए बहुत मतलब मतलब बहुत क्रूएल था उसकी तरफ से. तो वो बोल रहा है कि उसके पास जाओ और उसे बताओ कि उसकी सारे अनकाइंडनेस, मतलब वो जो जितनी क्रूएल्टी मेरे लिए कर रही है उन सब के बावजूद भी आई थिंक ऑफ नन बट हर, मैं सिर्फ उसके बारे में ही सोचता हूँ, मैं और किसी से प्यार नहीं करता हूँ. आई थिंक नन बट हर, सिर्फ उसी के बारे में सोचता हूँ. एंड रिमेन ट्रू टू हर अलोन, और मैं उसके लिए पूरी सच्चाई से डिवोटेड हूँ, मैं सिर्फ उसके प्रति ही डिवोटेड हूँ. एंड आई डोंट लव एनीबडी एल्स, आई ओनली रिमेन ट्रू टू ओलिविया हरसेल्फ. जाओ वायोला, तुम ये सब ओलिविया को बताओ.
For you are young, hardly as yet a man, and she will let you talk and will listen to your words. When she would send an older man away unheard. वो बोलता है कि तुम एक यंग बच्चे हो, एक बहुत ही छोटे बच्चे हो, क्योंकि वायोला एक बहुत ही यंग लड़की थी, तो शी हैड ड्रेस्ड हर सेल्फ एज अ बॉय ऑब्वियसली, बट शी वॉज लुकिंग स्टिल यंग, शी वॉज लुकिंग एज अ यंग बॉय. सो और सिनो ने कहा कि तुम एकदम यंग लड़के हो, बच्चे बच्चे जैसे हो, then you should go to Olivia, because maybe Olivia doesn't want to listen to older men. माने जो ज़्यादा एज का आदमी है, हो सकता है उसकी बात को वो ना सुने. ओलिविया जो है, जो थोड़ी ज़्यादा एज के जो लोग हैं उनकी बात को ओलिविया नहीं सुन रही होगी, लेकिन हो सकता है कि तुम यंग हो, और इसीलिए हो सकता है कि ओलिविया विल लिसन टू यू. इसीलिए यू प्लीज़ गो टू ओलिविया एंड टेल हर अबाउट माई लव towards her. So Viola, obedient to her master's command, started off for Olivia's house to try to persuade the lady to marry him whom she loved herself. अब वायोला जो थी वो she was so obedient towards her master, and she अब वो क्या करती है, जाने के लिए तैयार होती है ओलिविया के घर, और उसको परसुएट करने के लिए वो कोशिश करती है, मतलब उसको परसुएट करने के लिए, कोशिश करने के लिए वो माने अब जाने के लिए तैयार होती है वहाँ पे. तो इन प्लेस ऑफ परसुएट यू कुड राइट कन्विंस लिख सकते हो. इन प्लेस ऑफ परसुएट दैट शी वाज like she was ready to go to Olivia's house in order to convince her to marry the duke. या फिर ऐसे लिख सकते हो she was ready to go to Olivia's house in order to talk her into marrying the duke. ठीक है, तो convince somebody, persuade somebody to do something, convince someone to do something, ठीक है, और एक talk someone into doing something. ठीक है, these are all same, so these are the synonyms to one another, so you could use any of them. तो talk into भी लिख सकते हैं कि अब वायोला जो है उसके घर जा रही थी, and she would obviously try to she would talk to Olivia, into marrying the duke. तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, ठीक है, तो she would try to talk Olivia into marrying the duke, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो the lady to marry him, हाँ, but whom she loved herself, जिसको वो खुद से प्यार करती थी. वायोला भी तो ऑर्सिनो को प्यार करने लगी थी ना, but the irony is this, that she was working as a maid, as a page to the duke, and it was her duty to listen to all his commands, all his instructions. So this is what she was following, she was trying to follow, and following this she was ready to go to Olivia's house in order to convince that lady to marry Orsino. But however, she herself loved Orsino, but her heart was heavy as she went. लेकिन वो दुखी थी. Her heart was heavy means she was unhappy. She was not happy because वो मतलब उसको इंस्ट्रक्शन तो मानना पड़ेगा, बिकॉज वो उसका मास्टर है, उसकी बात तो उसको माननी पड़ेगी. बट अगर सही मायने में देखें तो शी वॉज नॉट हैप्पी. हर हार्ट वॉज हैवी. वाई? बिकॉज शी हरसेल्फ लव्ड द ड्यूक. शी हरसेल्फ वांटेड टू मैरी द ड्यूक. इसीलिए वो उसका दिल दुखी था. तो कहाँ थे? Having arrived at the gates, Viola asked the servant who answered her call that she should be allowed to see the lady Olivia. अब उसके गेट तक जब वो पहुंची, then Viola asked the servant who answered her call, जब वहाँ जाके वो उसने कॉल आउट किया ओलिविया के नाम से, तो उसके वहाँ जो सर्वेंट खड़ा हुआ था उसने उसको आंसर किया दैट शी शुड बी अलाउड टू सी द लेडी ओलिविया. उसको वो बोली कि मुझे ओलिविया से मिलने देना चाहिए. दैट शी वॉन्टेड टू मीट ओलिविया.
But the servant who had orders from his mistress to admit no one refused to let her in. लेकिन ओलिविया तो किसी से मिलना नहीं चाहती थी. Then the servant answered to Viola that she was not allowed to meet the lady, or she was not allowed to meet Olivia because he had the orders. Like उसको ऑर्डर मिला हुआ है अपनी मिस्ट्रेस से कि कोई भी आए तो उसको तुम घर में घुसने के लिए मत दो. ठीक है. तो उसने कहा कि नो, यू आर नॉट अलाउड टू मीट ओलिविया बिकॉज आई हैव गॉट ऑर्डर्स फ्रॉम माई मिस्ट्रेस दैट नोबडी इज अलाउड in the house to meet my mistress, to meet the lady. That's why she did not allow Viola to enter the house and to meet the lady. अब देखते हैं आगे क्या होता है, whether she was able to convince that servant or not. उसके बाद क्या होता है, but the servant who had orders, mistress यहाँ तक हो गया, she is ill, he said, no one may see my lady. उसने कहा कि नहीं, वो अभी बीमार है, एंड नो वन मे सी माई लेडी, मेरे जो मिस्ट्रेस है, नोबडी कैन सी माई मिस्ट्रेस, उनसे कोई ने भी नहीं मिल सकता. आई नो दैट शी इज़ इल, रिप्लाइड वायोला, देयरफॉर एम आई कम. तो उसने कहा कि मुझे पता है कि वो बीमार है, इसीलिए तो मैं आई हूँ. ठीक है. उसने कहा कि मुझे आई नो दैट ओलिविया इज इल, दैट्स व्हाई आई हैव कम टू मीट हर. ठीक है. तो उसने भी थोड़ा ट्रिक खेला कि चलो ऐसे बोल के देखते हैं कि चलो वो बीमार है इसलिए तो मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ. हाउएवर शी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट ओलिविया. आई विल नॉट गो अंटिल यू हैव लेट मी इन, बट सेड द मैन, शी इज एस्लीप, नो वन कैन सी हर नाउ. तो वो एक्सक्यूज मी, तो वो बोली कि नहीं, मुझे जब तक तुम मुझे मिलने के लिए जाने नहीं दोगे, आई वॉन्ट गो फ्रॉम दिस प्लेस. I won't go until you let me go in and see your lady, see your mistress. उसने भी एकदम से कसम खा लिया that she took a vow that until she was allowed to meet Olivia, she won't leave the place, she won't go back, like because she was so I mean क्या बोलेंगे उसको, she was so obedient towards her master. जो उसका जो मास्टर था, मतलब ऑर्सिनो, उसके लिए इतनी डेडिकेटेड थी अपने मास्टर के लिए कि वो क्या बोली कि नहीं, मुझे जब तक ओलिविया से मिलने नहीं देंगे, आई वोंट लीव दिस प्लेस, आई वोंट गो बैक. राइट. तो उसने कहा कि वो बोला कि नहीं, वो तो अभी बीमार है, वो सोई हुई है, इसलिए अभी उससे कोई भी नहीं मिल सकता है. दैट टू आई नो, वो भी मुझे पता है, दैट टू आई नो, मुझे पता है, सेड वायोला, बट स्टिल आई विल नॉट गो अंटिल आई हैव टॉक्ड विथ हर. अब वो बोलती है मुझे वो भी पता है, बट आई स्टिल वॉन्ट गो, जब तक भी मुझे उससे बात करने के लिए नहीं मिलेगा. ठीक है. आई वोंट गो अंटिल एंड अनलेस आई गेट अ चांस टू टॉक टू हर. देन द सर्वेंट वेंट एंड रिपोर्टेड द परसिस्टेंस ऑफ वायोला टू हिज मिस्ट्रेस ओलिविया, हु इंक्वायर्ड व्हाट द यंग मैन वाज लाइक. अब वो अपने जब इतना देखा, इतना ज़्यादा परसिस्टेंस देखा, मतलब इतना ज़्यादा जिद जब वो देखा वायोला की तरफ से, देन वो सर्वेंट क्या किया, ही वेंट इनसाइड द हाउस एंड he informed Olivia about Viola that somebody has come outside the house and somebody जो है कोई आया है और वो आपसे मिलना चाहता है. तो ओलिविया ने उसके बारे में इंक्वायरी की. शी इंक्वायर्ड अबाउट द यंग मैन कि कौन है वो यंग मैन, मुझे. ठीक है. उसके बाद क्या है हम लोग देखते हैं वो उसके बारे में. अच्छा, परसिस्टेंस के लिए आप लिख सकते हो, यू कुड राइट इन प्लेस ऑफ परसिस्टेंस डिटर्मिनेशन लिख सकते हैं, टेनासिटी लिख सकते हैं. सो कैसे लिखेंगे, ही वेंट इनसाइड द हाउस एंड ही इन्फॉर्म्ड हिज मिस्ट्रेस ओलिविया अबाउट द टेनासिटी और अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ वायोला. राइट. So let's go to the next page. यहाँ तक पढ़ लेते हैं कि Olivia who inquired what the young man was like, कैसा है, for it must be kept in the mind that Viola was dressed as a page boy. तो उसको पूछा ना कि वो वो जो ओलिविया थी वो पूछी उससे, अपने सर्वेंट से, कि वो जो यंग मैन आया है वो कैसा है, क्योंकि वो तो फॉर इट मस्ट बी केप्ट इन द माइंड, मतलब हम लोग को बताया जा रहा है
मैंने रीडर्स को बताया जा रहा है कि इसको दिमाग में रखना चाहिए कि वायोला जो थी वो तो पेज बॉय के जैसे वो ड्रेस होके रखी थी ना, तो शी वॉज नॉट लुकिंग लाइक अ गर्ल, शी वॉज लुकिंग लाइक अ यंग बॉय. एंड ओलिविया wanted to know about द यंग मैन, वॉट ही लुक्ड लाइक, कैसा दिखता है, कौन है वो, ठीक है, अपने सर्वेंट से वो पूछी. द सर्वेंट डिस्क्राइब्ड हिम एज अ गुड लुकिंग एंड सो स्टर्ड ओलिवियाज क्यूरियोसिटी दैट शी गेव ऑर्डर्स टू हर मैन टू शो द विजिटर इन. अब वो सर्वेंट जो है वो उसको बताया कि उसके बारे में बताया कि वो एक यंग सुंदर देखने में एक लड़का है, और सो स्टर्ड ओलिवियाज क्यूरियोसिटी. अब ओलिविया का जो क्यूरियोसिटी था वो थोड़ा उत्तेजित हो गया, थोड़ा मतलब सी स्टार्टेड हैविंग लाइक क्यूरियोसिटी कि अरे तो यंग लड़का सुंदर देखने में है, चलो मैं इसको बुलाती हूँ. दैट शी गेव ऑर्डर्स टू हर मैन टू शो द विजिटर इन. अब वो अपने सर्वेंट को बोलती है कि तुम उस विजिटर को अंदर का रास्ता दिखा दो, ठीक है. सो शी ओलिविया टोल्ड हर हस्बैंड, सॉरी, हर सर्वेंट to show the visitor or to allow the visitor to go inside the house or to come inside the house. But first she veiled her face. लेकिन शुरू में वो अपने फेस को वेल करके रखी थी, मतलब she covered her face with a कपड़ा और with a any kind of cloth, उससे उसको वेल करके रखी थी. Saying she did so that once more she would hear what the Duke had to say to her, for she had no doubt that the messenger came from him. अब पहले तो वो अपना फेस को थोड़ा कवर करके रखी थी, क्योंकि saying as she did so that once more she would hear what the Duke had to say, क्योंकि वो सुनना चाहती थी कि क्या ड्यूक उससे फिर से बोलना चाहता है, what the Duke wanted to tell her. इसीलिए she veiled her face फर्स्ट मोमेंट में अपना उससे क्या बोलना चाहता है, उससे उसका वेल का क्या संबंध है, आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. एनीवेज, तो क्या बोलना चाहती है, क्या बोलना चाहता है, उससे उसका वेल का क्या है, मुझे नहीं समझ में आया. एनीवेज, तो शी वुड हियर व्हाट द ड्यूक हैड टू से टू हर, फॉर शी हैड नो डाउट, क्योंकि उसको कोई डाउट नहीं था कि जो मैसेंजर आया है वो ड्यूक की तरफ से ही आया है. सो शी हैड नो डाउट दैट द मैसेंजर हैड कम फ्रॉम द ड्यूक हिमसेल्फ. सो when Viola came in, saw the ladies of the household seated around with the veiled figure among them. When Viola came in and saw the ladies of the household seated around with the veiled figure among them, she inquired which was the lady of the house. तो वायोला जैसे अंदर आई तो उसने देखा कि जो लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड, मैंने जितनी भी लेडीज़ थी वहाँ पे, हाउस होल्ड की लेडीज़ थी, सब ने अपना मुंह को छुपा के रखा हुआ था, तो उसको समझ में नहीं, शी वॉज अनेबल टू फिगर आउट हु वॉज द लेडी ऑफ द हाउस, आई मीन हु द ओनर वॉज. तो सी सेड शी हैड रिटन एंड लर्नड द वर्ड्स शी वॉज टू से सो केयरफुली दैट इट वुड बी अ पिटी टू एड्रेस देम टू द रॉन्ग पर्सन. तो उसने कहा कि सी सेड which was the lady of the house, what she said she had written and learned the words she was to say so carefully. Yes, तो एक्चुअली ड्यूक ने तो उसको बहुत समझा बुझा के भेजा था ना कि ऐसा ही बोलना है ना, ऐसा ही कहना है, ठीक है ना, ऐसा कि मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ और आई डोंट थिंक अबाउट एनीबडी एल्स, एनी अदर गर्ल, आई स्टिल एम totally devoted towards Viola, towards Olivia. So ये सब रटा रटाया वर्ड्स था एंड वायोला का यही सब जाके बोलना था, तो इसलिए वो किसी और को ये सब बात नहीं बता सकती थी. एंड शी वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड हु द लेडी ऑफ द हाउस वॉज, हु द ओनर वॉज, बिकॉज ओलिविया ही तो लेडी ऑफ द हाउस थी और ओलिविया को ही उसको सब कुछ सच सच बताना था. नाउ शी वॉज कन्फ्यूज्ड अमंग ऑल दीज वेल्ड लेडीज हु, जो ओलिविया उनमें से कौन है. सो एंड व्हेन, नहीं यहाँ से छूटा है, दैट इट वुड बी अ पिटी टू एड्रेस देम टू द रॉन्ग पर्सन. अब अगर वो भूल से किसी और को एड्रेस कर देती, किसी और को ये सब बता देती, तो ये बहुत ख़राब हो जाता. एंड व्हेन आफ्टर some talk she learnt that the veiled lady was Olivia. कहाँ गया, हाँ,
when after some talk she learned that the veiled lady was Olivia, she still refused to deliver her message until all others had been sent from the room. लेकिन जब वो उसको समझ में आया, when she learned and ultimately when she came to know that who the lady was and who Olivia was, even then she was reluctant to tell her the right message because she was still confused, I think, and she was not ready to tell Olivia the message of the Duke because she was still confused. उसे लग रहा था कि जब सब कोई चला जाएगा यहाँ से, and she was totally sure and she was damn sure कि यही Olivia है, तब जाके वो कहीं जो ड्यूक का मैसेज है वो ओलिविया को देगी. My words, lady, she said, are for your ears alone, and further, I beg you to let me see your face unveiled. तो वो बोलती है ओलिविया को, तो मतलब क्या हुआ यहाँ का, माई वर्ड्स लेडी मतलब मैं कुछ आपको बोलना चाहता हूँ. सी शेड आर फॉर योर ईयर्स अलोन, आप क्या यहाँ पे अकेली हैं. एक फ्रेज है, ये एक्सप्रेशन है जिसमें इसका मतलब होता है आर फॉर योर ईयर्स अलोन, क्या आप यहाँ पे अकेली हैं सुनने के लिए. तो आप मुझे अलाउ करिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ. एंड फर्दर आई बेग यू टू लेट मी सी योर फेस अनवेल्ड. एंड फर्दर I beg you to let me see your face unveiled, मतलब मैं आपसे I request that you should unveil your face so that I could see your face and make myself confirm that you are the one I wanted to talk. You are the one I want to talk, sorry. क्योंकि मुझे ओलिविया से ही बात करना है. मैं भूल से अगर और किसी से बात कर लेता हूँ तो this is not good because I have come from the Duke. Now Viola's youth and good looks, ready speech had made a great impression upon Olivia. अब जो वायोला का जो यूथ था, मतलब वो तो लड़का जैसे सजी थी ना, तो she was like a young youth, she was like a very handsome young boy, and she really had a good looks. She was really very good to look at as a boy, of course, because she was dressed herself as a boy. And उसका रेडी स्पीच, वो कितने अच्छे से बात की उससे, वायोला जी थी ओलिविया से कितने अच्छे से बात की कि यहाँ पे आप, मुझे लगता है आप अकेली हो, या फिर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी योर फेस अनवेल्ड एंड दिस दैट. सो मेनी टॉक्स shows Olivia listened to all this, and ultimately she had the impression about Viola that he was really a very young, good looking boy, and that left a very good impression upon the mind stuff of Olivia. So she soon became far more interested in the page himself than in any message he might bring her from the Duke. अब वो जो थी ओलिविया, वो खुद ही इंटरेस्टेड हो गई वो ओलिविया, मतलब वायोला के लिए. मतलब वो तो वायोला को एक लड़का के जैसे सोच रही थी, तो उसकी आवाज़ को सुनी, उसके बात करने का तरीका एंड एवरीथिंग, सो दैट रियली इंटरेस्टेड Olivia, and she became quite interested and she attracted towards Viola, and maybe she started loving Viola also. आगे पता चलेगा. तो अब वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी. She was not interested in the kind of message Viola had brought for her. She was not interested in that message anymore because she herself attracted towards the personality of Viola as a boy. तो so she was quite willing to, कहाँ थे हम लोग, any message, yes, so she was quite willing to let him see her face, and when her attendants had left the room she threw off her veil. अब वो खुद भी बहुत willing थी कि अपना फेस वो वायोला को दिखाए. ठीक है, वो खुद भी बहुत अब चाह रही थी कि हाँ ठीक है वायोला मेरा फेस को देखे, बिकॉज वो उसको लव एट फर्स्ट साइट था, वो उसको प्यार करने लगी, उसको दिखाना चाहती थी कि ठीक है मेरा चेहरा तुम देख सकते हो. एंड अटेंडेंट्स को वो बोली कि तुम लोग रूम से चले जाओ. लोग चला गया सब कोई, एंड सी थ्रू हर वेल ऑफ, वो अपने वेल को, अपना जो चेहरा को जो कवर की थी, शी अनकवर्ड हर फेस. एंड आई विल ड्रॉ द कर्टन सेइंग, उसने कहा कि आई विल ड्रॉ द कर्टन एंड शो यू द पिक्चर, इज इट नॉट वेल डन, एक्सीलेंटली डन, replied the page and praised her beauty, her fair complexion with flattering words.
अब वो बोली कि ठीक है मैं इस कर्टन को हटा देती हूँ एंड शो यू द पिक्चर, मतलब मैं तुमको असली चेहरा अपना दिखाना चाहती हूँ। तो उसको बोली क्या ये खूबसूरत नहीं है, इज इट नॉट वेल डन? तो बोली कि क्या देखो ये क्या खूबसूरत नहीं है, ये क्या अच्छे से बनाया हुआ नहीं है मेरा चेहरा? अपने चेहरे के बारे में पूछी तो वायोला क्या बोली, एक्सीलेंटली डन, बहुत ही खूबसूरत है तुम्हारा चेहरा। रिप्लाइड द पेज एंड प्रेज्ड हर ब्यूटी, वायोला ने उसकी ब्यूटी को प्रेज किया, तारीफ किया, एंड हर फेयर कॉम्प्लेक्सन, उसका गोरे रंग को उसने तारीफ किया, विथ फ्लैटरिंग वर्ड्स, फ्लैटरिंग वर्ड्स मतलब बटरिंग किया उसको, उसकी तारीफ करते हुए बहुत सारा फ्लैटरिंग और बटरिंग वर्ड्स उसने कहा वायोला ने, एज अ बॉय, माइंड यू, हाँ, एज अ बॉय, नॉट एज अ गर्ल. So in place of flattering words, you could also write complimentary words, praising words, commending words, right? So you could replace the word flattering with these words I have told you right now. So then he went on to speak to the Duke Orsino's love, of how he adored Olivia and spent his days weeping and groaning for love of her. उसके बाद वायोला ने ओलिविया को बताया कि how Duke Orsino loved her so much, and he would cry all the time in the memories of, or the loving memories of Olivia and all these things. कैसे वो रोता है उसके प्यार के लिए, वो कैसे रोता है, कैसे उसको तकलीफ होती है, ग्रोनिंग मतलब तकलीफ होती है, तुम्हारे प्यार के लिए उसे कितनी तकलीफ होती है, and all these things वायोला informed Olivia about all these things. If I did love, नेक्स्ट पेज में चलते हैं. सो इन दिस पेज फर्स्ट वाले में क्या था, इफ आई डिड लव यू एज माई मास्टर डज, सेड वायोला, आई वुड टेक नो डिनायल बट वुड बिल्ड अ कॉटेज एट योर गेट्स, देयर आई वुड लीव एंड कॉल योर नेम अलाउड. वो बोल रहा है कि अगर मैं आपको अगर अपने मास्टर की तरह प्यार करता, मतलब वायोला एज अ बॉय is telling Olivia that if I loved you as my master does, then what would I do, you know? उसको बोल रहा, तो आपको पता है मैं क्या करता, मैं आपका डिनायल को नहीं लेता, मतलब आप जो बार बार मना कर रहे हो मैं उसको, I would never accept that, rather what would I do, you know? I would make a cottage or make a hut in front of your gates and I would live there, मैं वहाँ रहने लगता और मैं आपके नाम को जोर जोर से चिल्लाता और मैं आपके नाम के ऊपर सॉन्ग्स लिखता, गाना गाता और सॉन्ग्स और सिंग टू यू, मैं लिख के आपको सुनाता, until at last you pitied me and listened to my love, जब तक कि आप मुझे मेरे ऊपर दया नहीं कर देते और मेरे प्यार को सुनते नहीं. ठीक है ना, ये वायोला ने कहा ओलिविया को कि इफ़ आई वेयर इन प्लेस ऑफ माई मास्टर देन व्हाट वुड आई डू, आई वुड मेक अ कॉटेज इन फ्रंट ऑफ योर गेट्स, आई वुड write a lot of songs, I would sing these songs to you, and until you pitied on me and you would start loving me. तो तब तक मैं करता रहता जब तक आप मुझसे प्यार नहीं करने लग जाते. तो you might do much, said Olivia, but your master I shall never love. Go back and tell him. तुम ऐसा कर सकते थे, ओलिविया ने कहा, कि लेकिन तुम्हारे मास्टर को मैं कभी भी प्यार नहीं करूँगी, क्योंकि वो तो खुद ही वायोला से प्यार करने लगी थी ओलिविया. जस्ट दिस वाज वंस अगेन, मतलब वायोला जो थी वो एज अ सिज़ेरियो अपने मास्टर ऑर्सिनो से प्यार करने लगी, और इधर क्या हो रहा है उल्टी तरफ, जो है वायोला जो है वो सिज़ेरियो के रूप में ओलिविया के पास आई है. तो ओलिविया हैज़ स्टार्टेड लविंग वायोला इन द डिस्गाइज ऑफ सिज़ेरियो. ठीक है, एक लड़के के रूप में वो उसको चाहने लगती है. तो बोलती यू माइट डू मच, तुम ये सब कर सकते थे, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे मास्टर से मैं कभी प्यार नहीं करूँगी. गो बैक एंड टेल हिम अबाउट माई रेस्पॉन्स एंड ऑल, कह दो उसको जाके. एंड लेट हिम सेंड नो मोर अनलेस इंडीड यू कम अगेन योरसेल्फ टू टेल मी हाउ ही टेक्स माई मैसेजेस. बोलती है कि लेकिन उसको अब कोई मैसेज मुझे भेजने के लिए मना करना, लेकिन हाँ अगर जब तक तुम खुद नहीं आते हो उसको मैसेज को लेके, क्योंकि वो तो वायोला को चाहने लगी थी ना ओलिविया सिज़ेरियो के रूप में. तो वो बोल रही है कि अगर तुम जब तक खुद नहीं आते हो उसके मैसेजेस को मुझे बताने के लिए, और मतलब हाउ ही टेक्स माई मैसेजेस, मतलब मेरे मैसेजेस को वो कैसे लेता है, वो कैसे उसके ऊपर रेस्पॉन्स करता है, तभी तुम मेरे पास आना, नहीं तो
मतलब आना ऑफ कोर्स, उसके मैसेज को लेके मत आना, तुम उसके मेरे मैसेज के ऊपर उसके रिस्पॉन्स को लेके तुम मेरे पास आना. For Olivia was fast falling in love with Viola, never doubting that she was a man, and could not bear to think she might never see her again. वो बोलती है कि वो तो बहुत फास्ट तरीके से वो उससे वायोला से प्यार में पड़ गई थी ना, तो वो बोली नेवर डाउटिंग दैट शी वाज अ मैन, कभी भी वो डाउट नहीं की कि अरे ये तो जो है, नेवर डाउट शी वाज अ मैन, कभी भी वो डाउट नहीं की कि वो लड़का नहीं है. ठीक है, कभी भी डाउट नहीं की कि वो लड़का नहीं है करके, कुड नॉट बियर टू थिंक, और वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि वो कभी भी उसको देख नहीं सकती है, कभी भी लाइफ में उसको फिर दोबारा से वो मिल नहीं पाएगी, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी. Then she offered money as a gift, but Viola refused it, and begging her once more to try to think a little more kindly of her master, took her leave. अब वो जो ओलिविया थी, she offered Viola a gift, a kind of gift which is a type of, कोई गिफ्ट होगा नहीं, सॉरी मनी था. ओलिविया ऑफर्ड वायोला एज अ गिफ्ट, मनी एज अ गिफ्ट, माने मनी के रूप में उसको गिफ्ट ऑफर की, बट वायोला डिड नॉट टेक इट, शी रिफ्यूज्ड दैट मनी, एंड रादर ऑन द कंट्रारी शी रिक्वेस्टेड ओलिविया दैट शी शुड थिंक अबाउट द लव ऑफ हर मास्टर. ठीक है, उसके बारे में फिर से एक बार आप सोचो कि आपको क्या करना है, और उससे वो विदा लेके वहां से चली गई. When Viola had gone, Olivia was surprised to find how quickly her affection had been won by a young man. अब वो ओलिविया जो एकदम सरप्राइज थी, and she started wondering how she had fallen in love with a young man, and how quickly she had fallen in love with a young man. She felt that if he had come pleading his own cause instead of the Duke's, her answer would ever been less stern, and she was very anxious to see him again. तो वो सोचती है कि अगर वो अपने मास्टर के बदले में, मैंने इंस्टीड ऑफ हर मास्टर्स मैसेज, अपने मास्टर के मैसेज के बदले वो खुद अपना मैसेज मेरे लिए लेके आता, तो मेरा आंसर जो होता इतना स्टर्न नहीं होता, लेस स्टर्न होता. मतलब थोड़ा सा तो शुरू में फटाक से तो ना नहीं, हाँ नहीं बोल सकती है, तो थोड़ा सा धीरे से उसको ना बोलती कि नहीं नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, या इस तरह से. तो मेरा जो आंसर है वो थोड़ा लेस स्टर्न होता, स्ट्रिक्ट होता, लेकिन थोड़ा लेस स्टर्न होता, इतना स्टर्न नहीं होता जितना इन केस ऑफ हर मास्टर. एंड शी वॉज वेरी एंक्शियस टू सी, और नाउ शी इज़ वेरी एक्साइटेड टू सी हिम अगेन, फिर से उसको देखना चाहती है, मिलना चाहती है. सो शी सर्च्ड हर माइंड for a plan whereby she might show Cesario that she loved him and so encourage him to come back. अब वो अपने माइंड को में सोचने लगी एक प्लान के बारे में, जिससे वो माइट शो सिजारियो दैट, वो जिससे सिजारियो को शो कर सकती है, मतलब वायोला को शो कर सकती है कि वो उससे प्यार करती है, और उसको इनकरेज कर सकती है उसके पास वापस आने के लिए, मैंने बोल सकती है कि तुम मेरे पास फिर से लौटो, फिर से आओ मुझसे मिलने के लिए. आफ्टर अ लिटिल थॉट शी टुक अ रिंग फ्रॉम हर फिंगर एंड कॉलिंग Malvolio, her servant, what a I mean complicated name, Malvolio. She gave it to him, saying, "Run after the Duke's messenger and return to him this ring which he has left behind, and tell him I will not accept it nor any other presents from his master." तो वो बोली, अपने वो एक सर्वेंट को बुलाई जिसका नाम मालवोलियो था, और वो बोली कि उसके पीछे दौड़ो, अभी जस्ट तुरंत ही तो वो निकला है सिजारियो, तुम उसके पीछे जाओ, और ये जो रिंग है उसके मास्टर को उसको वापस कर दो, और उसको कहो कि ये रिंग जो है मेरी जो उसकी जो मिस्ट्रेस है, मतलब ओलिविया है, शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस रिंग विच वॉज लेफ्ट बिहाइंड हर, जो कि उसके द्वारा छोड़ दिया गया था. मतलब जो रिंग सिजेरियो वहाँ पे छोड़ के गया है, मतलब वायोला वहाँ पे छोड़ के गई है, उसको रिटर्न कर दो, जो भूल से शायद वो छोड़ गया है वहाँ पे. देखो क्या होता है आगे. एंड टेल हिम दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट इट नॉर एनी प्रेजेंस फ्रॉम हिज मास्टर. उसको बोल दो कि माई मिस्ट्रेस, मतलब ओलिविया वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी गिफ्ट फ्रॉम हिज मास्टर, नॉर शैल ही कंसोल द ड्यूक विथ एनी होप दैट आई मे चेंज माई माइंड. और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको जरूर से बताना, मालवोलियो को वो बोलती है कि तुम यू गो टू और रन आफ्टर सिजारियो एंड टेल हिम दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द फर्स्ट हैंड शी
was not ready to accept any gift from her master or from his master, and on the second hand, on the other hand, she did not want to give any hope to his master that in future maybe she would change her mind. ऐसा कुछ भी नहीं है उसको इस होप में कभी भी वो जो है किंग ना रहे कि कभी ओलिविया अपना माइंड को चेंज कर सकती है फ्यूचर में. ये दोनों चीज़ उसको जाके बता दो. तो वो अपने मास्टर को जाके बता देगा ऑर्सिनो को. एंड टेल द पेज दैट इफ ही विल कम दिस वे टुमारो आई विल गिव हिम रीजंस फॉर इट. और उसको बोलो, मैंने पेज को मतलब सिजारियो को, क्योंकि वो तो चाहती थी ना कि सिजारियो किसी भी बहाने से उसके पास वापस आए. तो वो बोली कि वो जो पेज है, जो सिजारियो नाम का जो पेज मेरे पास अभी आया था, उसको बोल दो अगर वो मेरे पास फिर से दोबारा आएगा, कल आएगा, तो मैं उसको इसके लिए रीज़न भी बता सकती हूँ कि क्यों मैं उसके मास्टर को पसंद नहीं करती हूँ. हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था. नथिंग ऑफ दैट काइंड. द ओनली रीज़न वाई ही गॉट ऑल दिस थिंग्स टोल्ड टू सिजारियो थ्रू हिज सर्वेंट मालवोलियो, क्योंकि वो सिजारियो से दोबारा मिलना चाहती थी. एक बहाना था जस्ट उसको दोबारा बुलाने का. हाउएवर शी डिड नॉट हैव she did not have anything of this kind in her mind that उसको कोई रीज़न बताना है या ऐसा कुछ भी नहीं. वो जस्ट अपने उससे मिलना चाहती थी, इसलिए वो मालवोलियो को ये सब बात बोल रही थी. तो मालवोलियो डिड एज शी was bid, he was bid sorry, and वायोला सीइंग, तो मालवोलियो ने वैसा ही किया जैसा उसको बताया गया था. ठीक है. तो वायोला सीइंग, चलिए दिस इज ऑलरेडी 41 minutes, so I'm going to end this play here itself. So देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में कितना है. And Viola seeing the ring and knowing full well that Orsino had sent no gift by her guest, as indeed Olivia had hoped that she would do, that the lady was falling in love with her and wished to see her again. अब क्या है कि जो वायोला थी तो बहुत इंटेलिजेंट थी ना, so she at once understood that कि उसका मास्टर तो कोई भी गिफ्ट नहीं भेजा था उसके साथ. हाँ, हम लोग को भी ऐसा तो कभी कुछ पहले कोई उसके कॉन्वर्सेशन में नहीं था कि तुम ये गिफ्ट ओलिविया को दे देना. यस, तो दिस वाज ऑल on account of like the kind of excuses she was trying to make, Olivia trying to make, because she wanted to see her again, and she at once understood that Olivia was now in love with her. मतलब Olivia जो है was in love with Cesario, क्योंकि Viola तो was in the disguise of Cesario. तो she at once understood the reality and why Malvolio ये सब चीज़ मतलब Malvolio से वो बुलवा रही है. Knowing full well that Orsino had sent no gift, Orsino ने कोई गिफ्ट नहीं भिजवाया है, और उसने गेस कर लिया कि as indeed Olivia had hoped that she would do that the lady was falling in love. हाँ, तो उसको पता चल गया कि वो उससे प्यार करने लगी और उसको फिर से देखना चाहती है, इसलिए वो सब बहाना बनवा के उसको से बुलवाना चाहती है, nothing else. Alas poor lady, she said, she might as well love a dream as fall in love with me. तो उसने कहा कि अरे ये तो बेचारी ओलिविया वो मतलब ड्रीम देख सकती है, सपना देख रही है कि दैट शी हैज फॉलन इन लव विथ मी, बिकॉज आई एम नॉट अ गर्ल, आई एम नॉट अ बॉय, आई एम अ गर्ल. तो शी गॉट सरप्राइज्ड और बोली कि अरे बेचारी लड़की, उसको मेरे से प्यार करके क्या मिलेगा. वो अपने अपने अंदर में समझ रही है कि उसको मेरे से प्यार करके क्या मिलेगा, बिकॉज आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो अ गर्ल एंड शी इज ऑल्सो अ गर्ल, सो टू गर्ल्स कैन नॉट लव ईच अदर ऑब्वियसली. तो कहा थे, हाँ, हियर is a strange situation and all because I was so foolish as to dress up as a man. अब वो समझ गई कि ये जो strange situation जो create हो रहा है, this is all because she had dressed herself as a man. She had dressed herself as Cesario, and only because of this stupidity of herself, all this complicated situation had been arisen. Okay, so उसके बाद क्या हुआ कि here is a strange scenario हो गया situation. yes, I love the Duke and the Duke loves Olivia. मैं ड्यूक से प्यार करती हूँ और ड्यूक जो है ओलिविया से प्यार करते हैं, and Olivia loves me, और ओलिविया मुझसे प्यार करने लगी. अरे what is happening? It is a tangle too difficult for me to strengthen out. अब ये एक tangle बन गया है. tangle मतलब एक complicated situation बन गया है, एक ट्रायंगल टाइप का बन गया है आपस में, जिसको समझाना बहुत ही माने जिसको सॉल्व आउट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. स्ट्रेटन आउट मतलब उसको सॉल्व आउट करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट.
So so in place of tangle, you could also write intertwine. The spelling is INTERTWINE. So intertwine you could write in place of tangle. So the situation was totally intertwined, or the situation was totally tangled. Entangled also you could write. Entwined also you could write. Yes, you could also write entwined. The spelling is ENTWINE, right? So entwined you could also write in place of tangle. Or straighten out ka I have already told you that the situation has become so complicated and has become so difficult for me to solve it out. So you could write like this. Okay, so let's end the the play here itself. In this paragraph itself. In the next video I'm going to start from then she returned to Orsino's palace and told him. So from this paragraph we are going to start our next video of this 12th night. Okay, so if you really like my ways of teaching, my ways of explanation, and obviously I really try my best to give you a lot of synonyms while giving you explanations. So I really deserve great thumbs ups in all my videos, and also share all my videos with your friends so that they could also avail themselves of my knowledge. And also do subscribe to my channel if you are new, and do not forget to press on the bell icon so that you get all the notifications of all my videos, right? Okay, then we are going to start the next video from this paragraph. Till then, bye bye.